Hello students, the topic for today's lecture is normalization of relational database. Let me take you back to the steps for designing the database which we discussed in our previous lectures, and we started with the reality and made a pictorial presentation of it in the form of ER model or entity relation design. Then we proceeded by converting this ER diagram into relational data model, that is converting them into tables and defining relationship between those tables. Now we're on the last stage of database designing, that is normalization, which is the process of refining a database design. You've already created tables and a database design. Now we are refining that design to improve it further. We follow a set of rules and it helps us to eliminate data redundancy. It helps to maintain data integrity. So we discussed a flow chart. So we are done with this. Now we are here, normalization. We will follow a set of rules to normalize the tables and we'll see if there's a need to refine it further. If yes, then we'll again do normalization. Otherwise, we will reach our final database design. So let's discuss this normalization process. It's the process of efficiently organizing the data and is a process adopted to structure the data in a manner which, what is the objective? Which controls the data redundancy, right? And make sure that only related data are stored in the tables. What do we do in the process of normalization? We basically split existing tables into multiple ones and then rejoin them when a query is made in order to ensure that there is no data redundancy. So this may require splitting some tables and then rejoining them. Let's see. There are various stages or forms of data normalization, and we are going to discuss the first three forms of normalization. The first stage or the first form is the first normal form, second normal form, and then the third normal form. So let's proceed with the first normal form. A relation or a table is said to be in first normal form if it satisfies certain conditions. So what are those conditions? For a table, all the key attributes are defined. That is, in the table, the primary key is defined. Second, attribute values are atomic, that is single valued. जो भी attributes हैं उन सब की single value होनी चाहिए, multiple value नहीं. जैसे कि अगर name में first name and last name है तो it is not atomic, two values combined होंगे, तो we can make it atomic to achieve this normal form. The third condition is that table doesn't contain any repeating group. कोई attribute repeat नहीं होना चाहिए. So we'll see this with the help of an example. अगर इनमें से कोई भी condition satisfy नहीं है तो then we'll say that the table is not first normal form and then we'll try to convert it into first normal form. So we take an example of a retail store which records transactions made by each customer. Right? The store deals in say 6 types of products: P1, P2, P3, P4, P5 and P6. So how we represent it in the form of a table? से ट्रांजैक्शन टेबल मेंटेन करता है वो, जहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट, जो उस कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं वो प्रोडक्ट्स हम उसके लिए रिकॉर्ड करते हैं. सो सपोज ट्रांजैक्शन 1 इज मेड बाय कस्टमर 1 and he ordered product 1, 2, 3 and 6. So he ordered 4 products, 1, 2, 3 and 6. Then second transaction made by another customer C2 in which he bought 2 products, and then third one again by customer 2 and he ordered 1 product P3. So अगर हम इस तरह से एक टेबल मेंटेन करते हैं, we can see that the space is wasted because we do not know कि एक कस्टमर कितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर देगा. कोई 2 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है. So हम उतने अगर कॉलम्स बनाते हैं तो definitely some space is going to be wasted. Now here we observe that there are repeating groups. इस टेबल को अगर हम इस तरह से भी प्रेजेंट करें तो ट्रांजैक्शन टेबल है ये, जहाँ पे हमने ये सब फील्ड्स ले रखे हैं: ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट. बहुत बार प्रोडक्ट हम 4 बार रिपीट कर रहे हैं कि क्योंकि एक कस्टमर बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर
करेगा। अगर हम इन सबको कंबाइन करके एक ही कॉलम बना लें प्रोडक्ट के नाम से, तो देन एक ही सेल में मल्टीपल वैल्यूज़ आएंगी अगर एक कस्टमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करता है। इन दैट केस इट विल बी मल्टी वैल्यूड एंड नॉन एटॉमिक, सो इट विल बी नॉट first normal form. Right now also we have got repeating groups, so it is again not first normal form, and the space is also wasted. So how to convert this table into normal form? This table can be normalized into first form by eliminating the attribute product from this table and creating a different table named, say, transaction product. So instead of one single table, if we split this table and make another table, we can achieve the first normal form. So what we have done is, ये ट्रांजैक्शन टेबल में हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी और कस्टमर आईडी रहने दिया। प्रोडक्ट के लिए हमने एक सेपरेट टेबल बनाया ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट के नाम से, एंड वहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट रखे, ट्रांजैक्शन आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। सो अब हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है कस्टमर 1, सेकेंड ट्रांजैक्शन कस्टमर 2, थर्ड ट्रांजैक्शन कस्टमर 2। सो ये तो ट्रांजैक्शन और कस्टमर का डेटा दिखा रहा है, एंड यहाँ पर अगेन हम ये वाली की दोबारा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, और ट्रांजैक्शन 1 के अंदर प्रोडक्ट 1, 2, 3 एंड 6 ये सब ट्रांजैक्शन 1 के अंदर उसने खरीदे थे। सो हमने सिर्फ एक ही कॉलम प्रोडक्ट का बनाया है यहाँ पे। ट्रांजैक्शन 1 के अंदर P1, ट्रांजैक्शन 1 के अंदर P2, अगेन P3, P6। ट्रांजैक्शन 2 के अंदर वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, तो हम ट्रांजैक्शन 2 के अंदर P5, ट्रांजैक्शन 2 के अंदर P6। सिमिलरली फॉर ट्रांजैक्शन 3, 1 प्रोडक्ट इज बॉट। इस तरह से देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ स्पेस, देर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। अगर कोई एक खरीदता है तो हम एक के लिए लिख सकते हैं, अगर कोई 6 प्रोडक्ट खरीदता है तो हमें 6 डिफरेंट कॉलम्स ना बना के हम 6 बार वो एंट्री यहाँ पर लिख सकते हैं। एवरी एंट्री इज़ यूनिक हेयर, एंट्री रिपीट नहीं हो रही है। T1 P2 इज़ यूनिक, T1 में फिर से P2 नहीं आएगा, T1 रिपीट हो रहा है, बट ये कॉम्बिनेशन दोनों का ये एक यूनिक है, ये इस टेबल में दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको इस तरह से टेबल के फॉर्म में, रिलेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, सो बेसिकली वी हैव मेड 2 टेबल्स, ट्रांजैक्शन आईडी एंड कस्टमर आईडी। हेयर ट्रांजैक्शन आईडी इज़ द प्राइमरी की, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 का एक ही रिकॉर्ड होगा, 2 का भी एक ही होगा, 3 का भी एक ही होगा, तो यूनिकनेस है ट्रांजैक्शन आईडी। एंड हेयर ट्रांजैक्शन इज़ नॉट यूनिक, ये यहाँ पर फॉरेन की तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज़ द प्राइमरी की, दिस इज़ द फॉरेन की, 1 to many का रिलेशनशिप है, one of this matches with many rows, and if we see the second field is product, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है that gives uniqueness to a particular record, so it is a composite key here। transaction ID and product दोनों का मिला के composite key बन जाता है। and relationship transaction ID का transaction ID से है, 1 to many का primary key foreign key। So this is how. Now let's check whether they are in normal form or not. The first condition कि क्या एक primary key defined है? Yes, दोनों में keys defined हैं, right? Second thing, repeating group? No, there is no repeating group there. And are the attributes atomic? Yes, they are atomic. Every attribute can have just a single value, no multi-valued attribute. So we have converted this table into first normal form by splitting this table in this case. I hope this is clear. If we satisfy all the 3 conditions, then this becomes the first normal form. There is no space wastage also, no repeating group, even in fact no limit on the number of products also. All attributes are atomic and no repeating group. So this is repeated in fact. So the table is first normal form. Now we move on to the second normal form. So the second normal form, when is a table said to be in a second normal form, the second stage? A table is said to be second normal form if, first condition, it is in first normal form. तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सारी क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, एटॉमिक हो चाहे नॉन रिपीटिंग हो, राइट, एंड की एट्रीब्यूट, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। एडिशनली
एक और कंडीशन जो हम चेक करते हैं वो है इफ़ इट कंटेन्स अ कॉम्पोजिट की। अगर हम एक टेबल की बात कर रहे हैं, अगर उस टेबल के अंदर कॉम्पोजिट की है, देन all the non-key attributes must be dependent on the complete set of the composite key and not on any part of it. So second normal form हम check करते हैं in case of a table which contains a composite key. Composite key, right? जहाँ पे एक से ज़्यादा attribute को मिलाकर then they give a uniqueness to a record. तो अगर composite key है तो जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, बाकी बचे हुए जो एट्रीब्यूट्स हैं उस टेबल के, दे शुड ऑल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ दोज। अगर 2 को कंबाइन किया या 3 को कंबाइन किया तो उन सब के ऊपर उनके कॉम्बिनेशन पर डिपेंडेंट होना चाहिए बाकी जो भी बचे हुए नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें से किसी एक पे डिपेंड करता है और दूसरे की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स understand this with the help of an example. Again हम similar type का example ले रहे हैं, right, of a retail store से। transaction product के नाम से एक टेबल है जो हमने बनाया था टेबल, अभी उसी को हमने और एक्सटेंड कर दिया, सपोज और डिटेल्स डाल दी। ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट करके एक टेबल है वेयर इट इज़ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन आईडी, द प्रोडक्ट आईडी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये कॉम्पोजिट की है। सो दिस टेबल कंटेन्स अ कॉम्पोजिट की। ट्रांजैक्शन आईडी और प्रोडक्ट आईडी का कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिकनेस देता है इस टेबल को। एंड देन द अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर ट्रांजैक्शन डेट, वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन टाइप, दैट मीन्स वेदर इट इज सेल और अ परचेज, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच इज ऑर्डर्ड, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट आईडी में तो हम P1, P2, P3 ले रहे हैं बट एक्चुअली वो प्रोडक्ट क्या है, राइट, सो उसका डिस्क्रिप्शन, एंड प्रोडक्ट का प्राइस, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक फिक्स्ड प्राइस है इस शॉप पे। नाउ लेट्स सी वेदर दीज नॉन की एट्रीब्यूट, वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, अब इसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करना है तो पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। यस, की एट्रीब्यूट्स डिफाइंड हैं, अटोमिक भी हैं सारे, किसी के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी एक ही वैल्यू आएगा, या तो उसमें सेल या परचेज, सो और रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं है, सो इट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बट इफ़ वी चेक फॉर द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, उसमें कंडीशन क्या है कि अगर कॉम्पोजिट की है जो कि इस केस में है, देन वी हैव टू सी दैट द नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन द complete set of this and not individually on this. So let's observe transaction date। अगर हम देखें, transaction date is dependent upon transaction ID only। अगर T1 की बात कर रही हूँ मैं तो वो एक पर्टिकुलर डेट पे ट्रांजैक्शन अकर कर रही है। फिर प्रोडक्ट आईडी कुछ भी हो, ट्रांजैक्शन आईडी से ही ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ ही डेट वेरी हो रहा है। सो ट्रांजैक्शन डेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है ट्रांजैक्शन आईडी पर एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट आईडी। सिमिलरली ट्रांजैक्शन टाइप, बाय की है या सेल किया है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन 1 जो है वो परचेज का था, ट्रांजैक्शन 2 जो है वो सेल का था, सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी से ही हमें पता लग जाएगा ट्रांजैक्शन टाइप क्या है। We do not require product ID for that. So again, this is dependent only on one. So here we can see transaction date and transaction type depend only on transaction ID and not on a combination of both of them. Similarly, if we see the product description, प्रोडक्ट टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, सपोज इस तरह से अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता है तो वो ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, TI के ऊपर, T1 है, 2 है, 3 है, वो प्रोडक्ट आईडी से ही डायरेक्टली डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट 1 है तो सपोज वो टीवी है, प्रोडक्ट 2 है तो वो रेफ्रिजरेटर है, वो चाहे फिर किसी भी ट्रांजैक्शन आईडी में हो, P1, P2। सो बेसिकली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट आईडी एंड नॉट ऑन ट्रांजैक्शन आईडी। सिमिलरली प्रोडक्ट प्राइस, टीवी का क्या प्राइस है या AC का क्या प्राइस है, सो इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट आईडी। P1 के बारे में बात कर रहे हैं हम या P2 के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन ट्रांजैक्शन आईडी सिंस दिस कंपनी इज हैविंग अ फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी। सो अगेन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट प्राइस डिपेंड ओनली ऑन प्रोडक्ट आईडी एंड नॉट ऑन ट्रांजैक्शन आईडी।
सो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है, वी नीड टू कन्वर्ट इट। नाउ क्वांटिटी बच गई है। क्वांटिटी जो एट्रीब्यूट है, क्या ये ट्रांजैक्शन आईडी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट आईडी पे, या दोनों पे? क्वांटिटी, अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं P1 to P6, तो एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी परचेज या सेल हो रहे हैं। उन अलग अलग प्रोडक्ट्स की अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है, और अलग अलग ट्रांजैक्शन आईडी के अंदर ट्रांजैक्शन 1 के अंदर P1 के 2 प्रोडक्ट सेल हुए हैं, ट्रांजैक्शन 2 के अंदर P1 के हो सकता है 5 प्रोडक्ट सेल हुए हैं। सो दिस क्वांटिटी फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन बोथ ऑफ देम, कि कौन सी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी क्वांटिटी है। T1 के अंदर P1 की बात कर रहे हैं तो 2 है, T2 के अंदर P1 की बात कर रहे हैं तो 5 है, या T2 के अंदर P3 की बात कर रहे हैं तो वो 2 है। सो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो क्वांटिटी जो है ये ही सिर्फ ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट है विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन बोथ ऑफ देम बट नॉट अदर। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म टेबल? अब इसके लिए प्रोसेस ये है, वी हैव गॉट टू नो इट इज़ नॉट अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कैन बी अचीव्ड बाय रिप्रोड्यूसिंग द टेबल्स। एंड हाउ डू वी रिप्रोड्यूस इज, व्हाट डू वी डू, इनको हम एक सेपरेट टेबल में ले जाते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ट्रांजैक्शन टाइप और डेट जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक सेपरेट टेबल बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी ही एक की एट्रीब्यूट हो और उसके ऊपर ये दोनों डिपेंड करें। सिमिलरली एक और सेपरेट टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हो की एट्रीब्यूट, उसके ऊपर ये दोनों डिपेंडेंट हो। सो लेट्स सी, वी विल ब्रेक दिस टेबल इनटू 3 टेबल्स। ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट जो है हमारा टेबल वो यहाँ पर है, ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट। इसमें हमने ट्रांजैक्शन आईडी को, प्रोडक्ट आईडी को रखा था, साथ में हमने क्वांटिटी को रखा। वाई? बिकॉज इट्स अ कॉम्पोजिट की एंड द नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स अपॉन द होल सेट ऑफ द कॉम्पोजिट की। यानी कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हो गया टेबल। ये वाले टेबल को हमने ऐसे ही रहने दिया, बट बाकी की चीज़ें हमने हटा दी, 4 एट्रीब्यूट्स जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे कंडीशन। अब ये एट्रीब्यूट्स हम कहाँ लेकर गए, हमने एक टेबल बनाया ट्रांजैक्शन के नाम से, जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन टाइप डाला और ट्रांजैक्शन आईडी डाला। राइट, ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर डिपेंड करेगा डेट एंड टाइप, और इस टेबल में ट्रांजैक्शन आईडी को हमने की एट्रीब्यूट बना दिया। ट्रांजैक्शन आईडी इज की एट्रीब्यूट हेयर। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हर एक ट्रांजैक्शन यूनिक है। T1 का हम रिकॉर्ड करेंगे, उसका आईडी क्या है, T1 है, डेट कौन सी डेट पे हुआ और क्या था, वो सेल था या परचेज था। T2 कौन सी डेट पे हुआ, सेल था या परचेज था, लाइक दिस। सो यहाँ पे यूनिकनेस है ट्रांजैक्शन आईडी, सो ये प्राइमरी की बन गया। सिमिलरली हमने थर्ड टेबल बनाया प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट आईडी को की एट्रीब्यूट डिफाइन किया एंड से P1, एंड ये जो बाकी दोनों थे डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, इनको हमने इसके साथ यहाँ पे एट्रीब्यूट में डाल दिया। सो P1 है वो सपोज टेलीविज़न है, उसका प्राइस है सपोज 20,000। P2 है AC है, उसका प्राइस है से 30,000। सो हम हर एक उसके 3 फील्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, ये 6 रोज़ होंगी। अगर 6 ही प्रोडक्ट्स में वो डील करता है तो 6 रो का ये टेबल होगा, और हर आईडी हर रो यूनिक होगा, उसके साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होंगी, डिस्क्रिप्शन भी, प्राइस भी। सो इस तरह से प्रोडक्ट टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, और ये दोनों टेबल्स अगर हम देखें तो ये भी अपने आप में सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ही, इसमें की एट्रीब्यूट्स हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें चेक ही नहीं करना इनको, क्योंकि इनके अंदर कॉम्पोजिट की है ही नहीं। इस टेबल में कॉम्पोजिट की है तो हमने चेक किया इसे, कॉम्पोजिट की नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड अपॉन बोथ ऑफ देम। सो नाउ दिस होल कॉम्बिनेशन इज अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे ये प्राइमरी की है, रिलेशनशिप कैसे डिफाइन किया, इस प्राइमरी की को यहाँ का फॉरेन की, इसकी प्राइमरी की को अगेन यहाँ पे फॉरेन की, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर कॉम्पोजिट की। इट गिव्स अ यूनिक आइडेंटिटी टू अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। TI और P1 का कॉम्बिनेशन, ट्रांजैक्शन आईडी और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट सम टेबल इनटू अ नॉर्मल फॉर्म। अब हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। नाउ
Let's move on to the third and the last normal form. Third normal form. Now, a table is said to be in third normal form if पहली कंडीशन ये है कि it is in first and second normal form. तो ये हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं. पहली स्टेज कंप्लीट होनी चाहिए, देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड वन, एंड सेकेंड कंप्लीट होनी चाहिए, देन वी मूव ऑन टू द थर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म नॉर्मल होना चाहिए वो टेबल. एंड देन एडिशनली व्हाट वी चेक इज every non-key attribute is directly dependent on the key attribute. यहाँ पे वो composite key की बात नहीं कर रहा, बट अदरवाइज भी अगर सिंगल एक प्राइमरी की भी है, कोई भी की एट्रीब्यूट है एक टेबल में, सो बाकी सब जो भी हैं उसके एट्रीब्यूट्स वो सब डायरेक्टली उस की एट्रीब्यूट पर ही डिपेंडेंट होने चाहिए. दे शुड डायरेक्टली डिपेंड ऑन द की एट्रीब्यूट. दे शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर नॉन की एट्रीब्यूट. ठीक है, डायरेक्टली वो की एट्रीब्यूट पर ही बाकी सारे एट्रीब्यूट डिपेंड होने चाहिए. ऐसा भी ना हो कि वो एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो जिसे हम फॉर्मूला के थ्रू कभी भी डिराइव कर सकते हो. सो सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली डिपेंड होने चाहिए की एट्रीब्यूट के ऊपर. दिस इज द कंडीशन फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज अ होलसेलर इज डीलिंग इन वन प्रोडक्ट. ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है इसका, and he maintains an order record. The price may be bargain. प्राइस वेरी हो सकता है, अलग अलग ट्रांजैक्शन में अलग अलग प्राइस को चार्ज कर सकता है सपोज. सो इस तरह का उसने एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे हर ऑर्डर की आईडी है वो रिकॉर्ड करता है, और फिर एक पर्टिकुलर ऑर्डर O1, O2, O3 जो भी है वो उसके आगे वो क्या रिकॉर्ड करता है, कौन से कस्टमर ने वो ऑर्डर किया, कस्टमर का एड्रेस, ऑर्डर की डेट, क्वांटिटी. प्रोडक्ट एक ही है तो प्रोडक्ट नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, वो सीधा क्वांटिटी रिकॉर्ड कर रहा है. प्राइस पर यूनिट, ये भी ऑर्डर के ऊपर डिपेंड कर सकता है क्योंकि हमने कहा कि वेरिएबल हो सकता है प्राइस. एंड द अमाउंट विच इज़ नथिंग बट क्वांटिटी इनटू प्राइस इज अमाउंट. नाउ लेट्स चेक वेदर इट इज़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म और नॉट. थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले चेक करते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है कि नहीं है. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए की एट्रीब्यूट है, ओके डन. नॉन रिपीटिंग है, डन. अटोमिक है, डन. सो येस इट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. लेट्स चेक फॉर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए जो एडिशनल क्राइटेरिया होता है वो होता है इन केस इट हैज़ अ कॉम्पोजिट की. सिंस दिस टेबल इज नॉट हैविंग अ कॉम्पोजिट की, देर इज नो यूज ऑफ चेकिंग इट फॉर द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, राइट. सो नाउ वी आर डन विद द थर्ड कंडीशन, दैट इज every non-key attribute is directly dependent on the key attribute. So these are the non-key attributes. Each of them should directly depend upon the key attribute which is order ID in this case. So customer ID depends upon order ID. Customer address, does it depend upon order ID? No, customer address will depend upon कौन सा customer है, इससे ऑर्डर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. कस्टमर एड्रेस विल डिपेंड, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस कस्टमर का एड्रेस क्या है, राइट. चाहे वो ऑर्डर 1 में आए, चाहे वो ऑर्डर 5 में आए, अगर C1 है तो एड्रेस C1 का होगा. सो हेयर वी सी दैट कस्टमर एड्रेस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्डर आईडी. इन फैक्ट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कस्टमर आईडी. सो की एट्रीब्यूट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है कस्टमर एड्रेस. सो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं है. और देखते हैं ऑर्डर आईडी के ऊपर क्या ऑर्डर डेट डिपेंडेंट है, यस. क्वांटिटी क्या ऑर्डर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है, यस. ऑर्डर आईडी डिफाइन करेगा कि कितनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर ऑर्डर में क्वांटिटी ऑर्डर की गई है उस प्रोडक्ट की. देन प्राइस, यस, बिकॉज वी हैव assume that the price may be bargained. तो yes, it will depend upon कौन से ऑर्डर के अंदर क्या प्राइस है. अमाउंट अगर हम देखें, इट डायरेक्टली डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्डर आईडी. इन फैक्ट इट कैन बी डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस इनटू क्वांटिटी. एंड ये फॉर्मूला लगा के हम कभी भी अमाउंट को डिराइव कर सकते हैं. सो देर इज़ नो यूज ऑफ रिकॉर्डिंग एन एट्रीब्यूट विच कैन बी डिराइव्ड लेटर ऑन. हमने क्वेरी किया था, एक्सप्रेशन बिल्डर किया था, वी कैन डिराइव दिस बाय अप्लाइंग अ फॉर्मूला इन अवर क्वेरी एनी टाइम लेटर. सो वाई टू
make it as a separate attribute here. Why to waste the space? So ये derived attribute है, ये directly dependent upon की attribute नहीं है, तो हमें इसे भी remove करना होगा. So now how to convert this table into third normal form? It can be achieved as follows. What we'll do, we'll remove this also and this also. जो भी की attribute के ऊपर directly dependent नहीं है उसे हम remove कर देंगे उस table से. सो अब ऑर्डर टेबल के अंदर क्या बच जाएगा? ऑर्डर आईडी विच इज़ द की एट्रीब्यूट, कस्टमर आईडी इट डिपेंड्स अपॉन दिस, ऑर्डर डेट, ऑर्डर क्वांटिटी एंड द प्राइस. ये सब डिपेंड करते हैं कौन से ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, कौन से कस्टमर ने किया, किस डेट पे, कितनी क्वांटिटी और कितना प्राइस हमने उस ऑर्डर में चार्ज किया. सो नाउ दिस इज़ थर्ड फॉर्म नॉर्मल एंड वी हैव मेड, ये हम कहाँ लेकर गए कस्टमर एड्रेस को? हम दूसरा टेबल हमने बनाया कस्टमर के नाम से, जहाँ पे कस्टमर एड्रेस के साथ हमने कस्टमर आईडी रखा. कस्टमर आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है कस्टमर एड्रेस. कस्टमर आईडी को यहाँ पे हमने प्राइमरी की बनाया. सो ये कस्टमर का डेटाबेस है, हम अलग टेबल में मेंटेन कर रहे हैं. सपोज हमारे 20 कस्टमर्स हैं जिनका रिकॉर्ड हम रखते हैं, तो C1 से लेकर C20 तक यहाँ पे रोज़ होंगी जिसके अंदर उनका एड्रेस या फिर और जो भी डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे. एवरी कस्टमर आईडी विल बी यूनिक इन दिस टेबल. सो ये प्राइमरी की हो गई, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की है. दिस इज ऑल्सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, दिस इज ऑल्सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड ये प्राइमरी की बन जाती है यहाँ पर आकर फॉरेन की. 1 to many का रिलेशनशिप है. कस्टमर आईडी यहाँ पर रिपीट हो सकती है. ऑर्डर 1 भी है, कस्टमर 1 ने किया है, ऑर्डर 5th भी कस्टमर 1 ने किया है. सो कस्टमर आईडी रिपीट हो सकती है, राइट, ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं होगी. एंड दिस इज हाउ वी कन्वर्टेड दिस पर्टिकुलर टेबल इनटू द थर्ड नॉर्मल फॉर्म बाय स्प्लिटिंग दिस टेबल एंड नाउ वी कैन सी. सो दिस इज द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर regarding the 3 normal forms. You can see other examples from the book also to clarify this concept more. Okay, thank you.